friends, welcome to the Pulse Excel. So in this video lecture, I am going to discuss a very important topic from analytical chemistry, that is the SDS page. Okay, so before start with this actually concept of the SDS page, first of all you need to understand some of the major key point to understand the overall concept. Okay, so what are those key points that you can see now over here? The SDS पेज का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये है that this particular technique is known as sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. तो ओवरऑल जो ये पूरा जो टेक्निक है इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ व्हाट योर स्टूडेंट gel electrophoresis technique. So actually with respect to that, in the oral technique you must need to understand the three major terms properly. That first one will be the your gel, second sample preparation, and third one will be the electrophoresis. So once you understand all these three major key points, that means it indicates that you totally understand the what is the meaning of the SDS page. So without wasting our time, we are just started with our main topic, that what is the SDS page. So as earlier I mentioned that the full form of the SDS page, which is nothing but the sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. तो इसका मतलब ये है कि एक आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जिसमें हम लोग एक surfactant solution use कर रहे हैं sodium dodecyl sulfate. It is actually student one kind of the anionic surfactant, and along with that we also use over here the polymer solution, means polyacrylamide. पॉली का मतलब यहाँ पे है पॉलीमर से, तो ये पॉलीमर जो सॉल्यूशन है वो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सो व्हाट इज द नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द दिस सर्फैक्टेंट सॉल्यूशन एंड दिस एक्चुअली polymer solution under this gel electrophoresis, that we have to see the one by one. तो सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So after looking at the full form of the sodium means SGS page, that what is the importance of this technique? So it is actually very famous actually separation technique that is used for the separation of actually student what proteins based on their actually molecular weight. So here you can see I'm just changing the color of this word because these words is really important, because whenever you are going to discuss the any gel electrophoresis technique, means here you are talking about the separation of the fragments of the macromolecules like your DNA, RNA, proteins, everything, but based on their charge and size. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, चार्ज और साइज के हिसाब से उसको सेपरेट आउट करते हैं. बट एसडीएस पे दिस एक्चुअली प्योर टेक्निक बेस्ड ऑन दी व्हाट योर मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पे सिर्फ हम मॉलिक्यूलर वेट को कंसीडर करके ही आपके प्रोटीन सैंपल को सेपरेट करते. तो ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है इन द एसडीएस पे. नेक्स्ट ये जो टेक्निक है हम लोग वाइडली यूज करते हैं इन द फॉरेंसिक, then genetics, biotechnology and the molecular biology to separate the protein molecules based on their electrophoretic mobility. अब electrophoretic mobility का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब ये है कि based on their actually charges. तो जैसे कि हमारे प्रोटीन सैंपल में whatever the charges are there, plus or the minus cations or the anions, based on their charges, applying the electric current, and with the help of that voltage we separate out the what your charged particles. So we can call it as a electrophoretic process, means electrophoretic mobility. Mobility का यहाँ पे मतलब है here you are talking about the migration of the ions. Okay, so this is all about the what your means SGS page. But before start with this, first of all you should clearly understand the meaning of the one, that is the gel electrophoresis, and then later on we jump on to the what your SGS page कि SGS page जो word है वो कहाँ से आया. तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे this GE word stand for the gel electrophoresis. So gel electrophoresis, it is a one kind of the analytical technique student that used to separate the fragment of macromolecules. मतलब यहाँ पे हम लोग DNA, RNA, प्रोटीन जो है वो सारी के सारे मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज एंड द चार्ज. बट आप अगर ऐसे नहीं यू आर गोइंग टू बी जंपिंग टू द एसडीएस पे, तो यहाँ पे सिर्फ हमें मॉलिक्यूलर वेट को कंसीडर करना है. सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब हम लोग यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो भी कंपोजिशन होता है, ओके, दैट कंपोजिशन इज इक्वल थ्रू आउट द होल जेल. तो यहाँ पे थ्रू आउट द होल जेल उसका जो भी कंपोजिशन होगा वो पूरा का पूरा एज सच मेंटेन होता है. और यहाँ पे जेल जो होता है वो हम लोग हॉरिजॉन्टली रन करते हैं एंड सेट एज अ कूल. तो कॉन्सेंट्रेशन ओनली 0.2% ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है. एंड जो सेपरेशन जो होता है वो होता है 50 to
20,000 जो होते हैं न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं एट अ टाइम, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द योर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन टेक्निक. फर्दर नाउ दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हैविंग द 3 टाइप. तो आगे देखिए इसके 3 टाइप्स है. फर्स्ट है आपका इसमें एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सेकंड इसमें आता है आपका स्टूडेंट स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड थर्ड वन विल बी द polyacrylamide gel electrophoresis. And then finally these further polyacrylamide जो gel electrophoresis है, the third type of the gel electrophoresis further divided into mainly two part, जिसमें आपका first part आता है native page and then second type is going to be SDS पेज. और यही आज का हमारा स्टूडेंट क्या है टॉपिक है जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है. तो नेटिव पेज और एसडीएस पेज में स्टूडेंट इतना ही डिफरेंस है कि नेटिव पेज में जो भी हमारा प्रोटीन हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग एज अ ओरिजिनल मोड उसको यूज करते हैं. सो इट इज अ ओरिजिनल मोड ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस. बट वेयर एज द इन द एसडीएस पेज यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे डीनेचुरेशन होता है, whereas यहाँ पे आपका डीनेचुरेशन नहीं होता है नेटिव पेज में. So this is overall difference between this native page and the SDS page electrophoresis technique. So I hope so now you should completely understand the difference between this oral technique. So now let us start with the what your SDS page. तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि SDS page जो टेक्निक वो हमें स्टडी क्यों करना है and what is the purpose behind it, because there are actually lots of separation techniques are available, but why still we need to approach this SDS page technique. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको अगर डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको अगर सेपरेट आउट करना है, सो यू कैन इजीली यूज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. देन व्हाई वी आर गो विद द एसडीएस पेज. तो एसडीएस पेज में हम लोग स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कि अगर आपको किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का प्योरिटी चेक करना है या फिर उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर वेट देखना है, उसमें कितने एस एंड एस जो कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो कितने उसमें प्रेजेंट है, ऐसे आपको अगर कुछ डिटेल चाहिए कैरेक्टराइजेशन उसका करना है, तो स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं फिर एसडीएस पेज टेक्निक को यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मॉलिकुलर साइज के बारे में बात करें. सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एसडीएस पेज टेक्निक अंडर द योर व्हाट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट that what are the process of the SDS page. So when we discuss about the process of the SDS page, the oral technique जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये ऑल दिस एक्चुअली 3 पार्ट्स, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दिस ऑल द पार्ट्स आर गोइंग टू बी टोटली डिपेंडिंग अपॉन द 3 पार्ट इन विच योर फर्स्ट पार्ट विल बी स्टूडेंट व्हाट प्रिपरेशन ऑफ द जेल. मतलब ये प्रिपरेशन ऑफ द जेल इट इज द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक. सो वंस यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर द जेल, सेकेंड इसमें पार्ट आता है स्टूडेंट सैंपल प्रिपरेशन, जिसमें आपको क्या करना है यहाँ पे सैंपल को बनाना है. एंड थर्ड पार्ट यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब जहाँ पे आप एक्चुअल में आपका सेपरेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हो. सो दिस इज हाउ द these actually 3 processes are the heart of the SDS page. So now we can looking at the one by one each and every step over here. So let us start with the first प्रिपरेशन ऑफ द जेल. अब यहाँ पे हमें जो जेल जो चाहिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने आपको अर्लियर प्रीवियस स्लाइड में बताया था 3 मेजर की पॉइंट है. एक तो आपको समझना है जेल क्या है, आपका सैंपल कौन सा है, और आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे कैरिड आउट करते हैं सेपरेशन वो समझना है. तो आप पूरा एसडीएस पेज पे समझ जाओगे. तो आप प्रिपरेशन ऑफ द जेल में ये कुछ कंपोनेंट्स है, ये यहाँ पे हमें क्या करने हैं स्टूडेंट यूज करने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है केमिकल सॉल्वेंट अक्राइल अमाइड. ठीक है. तो अक्राइल अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. फिलहाल आप केमिकल देख लीजिए कि कौन से मटेरियल्स यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पे हमें लगेगा अक्राइल अमाइड, अलोंग विद दैट यू रिक्वायर द बफर सॉल्यूशन. तो यहाँ पे 1.5 m जो है मोलार ट्रीस है. बफर का रोल इतना ही होता है कि दे आर गोइंग टू बी मेंटेन द पीएच. तो इसका जो पीएच है वो आपको मेंटेन रखना 8.8. उसके बाद आपको चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए डबल डिस्टिल वाटर. ठीक है. then you require the ammonium persulfate. okay. and then finally timid. timid का मतलब यहाँ पर है स्टूडेंट n tetramethylene what tetramethyl ethylene diamine. and finally you require the detergent means surfactant solution, that is the SDS. so these are the actually all the
मटेरियल्स यू रिक्वायर टू प्रिपेयर दैट। अब ये जो मटेरियल आपने यूज करके जो भी मर्ज आपने जेल बनाया होगा स्टूडेंट, उस जेल को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग जेल। रिजॉल्विंग जेल का यहाँ पे मतलब होता है रनिंग जेल विच इज प्रेजेंट एक्चुअली द बॉटम ऑफ द कंटेनर। मतलब मान लीजिए कि ये आपका एक्चुअली ग्लास कास्टिंग चेम्बर है इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के लिए, और यहाँ पे जो बॉटम जो होता है ना, इस बॉटम में जो जेल होता है उस जेल को यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं रिजॉल्विंग और द रनिंग जेल। सो दिस इज द पोजीशन। अब सेकेंड जेल है यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं वो है आपका यहाँ पे स्टूडेंट बोर्ड स्टैकिंग जेल। जब स्टूडेंट यहाँ पे जो दूसरा जेल जो हमें बनाना है वो यहाँ पर है स्टैकिंग जेल। अब स्टैकिंग जेल का यहाँ पे पहले तो मतलब क्या है वो यहाँ पे आप समझ लो। स्टैकिंग जेल का यहाँ पे मतलब है कि सॉल्यूशन जो है मटेरियल वो सेम ही रहेंगे, एज यू कैन सी ऑन दिस लिस्ट सेम है। बस यहाँ पे सिर्फ अक्राइल जो अमाइड है इसका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेस होना चाहिए, किसमें, स्टैकिंग जेल में। सो द लेस कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे स्टूडेंट मतलब ये लेस कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब यहाँ पे जो पोर साइज जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो लेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो पोर साइज है आपके मटेरियल का, वो पोर साइज इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पोर साइज इंक्रीज होगा तो यहाँ पे उसका आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैकिंग जेल। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम लोग यहाँ पे बफर यूज करें उसका भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है कंपेरेटिवली और व्हाट रिजॉल्विंग जेल। तो ये यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे आपको 0.5 लेना है। यहाँ पे पीएच 8.8 है तो यहाँ पे स्टैकिंग जेल का पीएच आपको 6.8 लेना है। सो यू कैन नाउ सी दिस इन द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू यूज टू डिफरेंट जेल। तो यहाँ पे जब हम लोग दो अलग डिफरेंट जेल यूज कर रहे तो दिस पर्टिकुलर सिस्टम को यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं लैमेली बफर सिस्टम। अब लैमेली बफर सिस्टम का मतलब यहाँ पे होता है डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूअस। सिंपली मीन्स दैट द स्टूडेंट बफर इन द जेल एंड द टैंक आर डिफरेंट, so we can call it as a what here student, discontinuous buffer system. Okay, I hope so now you should clear. And remaining all the component as you can see the SDS, timid, double distilled water and APS, that is going to be common. Only difference is that the buffer solution pH and the concentration of acrylamide. Okay, इसमें ही difference है। Then after you are going to be once prepare the gel, आपने अभी दोनों जेल बना लिए। अब स्टैकिंग जेल है उसका पोजीशन एपरेटस में कहाँ पे होगा, ऑन द टॉप ऑफ द वॉट यूर एपरेटस। तो आपका जो भी ग्लास कास्टिंग जो चेम्बर होगा, ग्लास कास्टिंग जो एपरेटस होता है इलेक्ट्रोफोरेस का, तो उसके टॉप में हम लोग क्या करते हैं, स्टैकिंग जेल को डालते हैं। और ये जो रिजॉल्विंग जेल है वो इसका पोजीशन कहाँ पे होता है, एट द बॉटम। ठीक है, सो वंस यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर द स्टैकिंग जेल, अब हमें बनाना है सैंपल को प्रिपेयर करना। अब सैंपल मतलब जनरली हम लोग जो एसडीएस में यूज करते हैं दैट ऑल अबाउट दी व्हाट योर स्टूडेंट प्रोटीन सैंपल। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रोटीन सैंपल लेना है जिसमें आपको बफर यूज करना है ट्रिस HCl। अब HCl का यहाँ पे सिर्फ फ्लोर है, दे आर जस्ट सपोज टू प्रोवाइड द क्लोराइड आयंस इनटू द एंटायर प्रोसेस along with the pH 6.8 ही आपको इसका रखना है। then again use the surfactant solution SDS आपको यहाँ पे यूज करना है। then you are going to use a beta mercaptoethanol। beta mercaptoethanol actually basically used in the chemical reaction while you are going to be prepare this solution। तो प्रोटीन सैंपल में जो आपका एस एंड एस जो कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसको डिस्टर्ब मतलब उसको ब्रेक करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल यूज करते हैं सैंपल प्रिपरेशन में। देन ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई। अब ये जो डाई होता है ये हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। मतलब जब आपका जो जेल जो है सैंपल जो है वो आप जब जेल में इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है, इस ग्लास कास्टिंग एपरेटस में। तो वो पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए, वो कलर विजुअलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई। तो आपको एक ब्लू कलर वहां पे आइडेंटिफाई होता है, उससे आप एग्जैक्टली जेल का जो पोजीशन होता है वो लोकेट कर पाते हो। एंड देन फाइनली ग्लिसरॉल एंड द व्हाट यूर डबल डिस्टिल वाटर। अब ग्लिसरॉल जो ग्लाइसिन है दैट इज ओनली टू क्रिएट द विस्कोसिटी फॉर योर सोल्यूशन, तो उतना ही उसका पर्पज है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स बेटर विस्कोसिटी। सो डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज अगर विस्कोसिटी नहीं होगा तो आपका सैंपल सोल्यूशन जो है प्रॉपरली रन नहीं होगा आपके जेल सोल्यूशन में। ठीक है, तो इसके लिए हमें वो यूज करना है। सो दिस इज हाउ वंस यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर द सैंपल सोल्यूशन, उसको लिटिल बिट हीट करना है आपको, ताकि मतलब लेस देन द 5 मिनट, ज्यादा नहीं, ताकि जो भी आपका प्रोटीन है उसका डीनेचुरेशन हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये सैंपल क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो आपके ग्लास कास्टिंग एपरेटस में। एंड देन यू अप्लाई द थर्ड स्टेप। अब थर्ड
स्टेप है यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब यहाँ पे क्या करते हो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग द वोल्टेज, स्टार्ट द सेपरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर आपको क्या करना है, डिफरेंट सॉल्यूशन यूज करना है, तो अगेन यू आर गोइंग टू यूज अ बफर ग्लाइसिन, आप यहाँ पे ले रहे हो ट्रीस बफर सॉल्यूशन अलॉन्ग विद ग्लाइसिन। अब यहाँ पे जो आपका पीएच है, इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट, तो यहाँ पे जो आपका पीएच होता है उसका पीएच वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 8.3, ये आपको याद रखना है। And this actually again running buffer you are going to add and you are going to complete the whole process. अब यहाँ पे आप अगर one more thing, if you are going to notice this student, so it is very wonderful that कि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जेल का जो आपका स्टैकिंग जेल है और जो रिजॉल्विंग जेल है, इनका पीएच देखो 8.8 है, इसका 6.8 है, सैंपल का 6.8 है। सो वेराज इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो बफर यूज करे उसका पीएच यहाँ पे 8.3 है। सो व्हाई दीज आर हैविंग द डिफरेंट पीएच, अगर यहाँ पे डिफरेंट पीएच है फिर सेपरेशन कैसे होगा आपके चार्ज पार्टिकल का, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एसडीएस पे। तो वो हम लोग यहाँ पे इन डिटेल स्टडी करेंगे कि डिफरेंट पीएच का यहाँ पे क्या एक्चुअली रोल है, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल है वो बफर सॉल्यूशन का है, बिकॉज दैट बफर सॉल्यूशन ओनली helps to resolving, means help to separation process, ठीक है, that you have to see now in the next slide, but before that you can just go through the your what gel preparation, जो polymerization है उसका हम लोग chemical reaction समझ लेते हैं सबसे पहले। So now you can see over here, so this is the what your acrylamide structure, CH2, then CH double bond O NH2, this is the acrylamide, n number of, this is again n number of your n dash with what methyl ethylene what बायक्राइलमाइड, टिमिड, आपने यहाँ पे टिमिड का यहाँ पे सिर्फ रोल है एज अ कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। अमोनियम जो परसल्फेट है, दिस इज एक्चुअली एज अ इनिशिएटर, सो दिस इज द वन काइंड ऑफ द स्टेबलाइजर। तो रेडिकल जो होते हैं, तो दैट रेडियल जनरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे अमोनियम परसल्फेट को यूज करें, बिकॉज दिस इज द एक्चुअली व्हाट पॉलीमराइजेशन ओवरऑल प्रोसेस है। तो आफ्टर द रिएक्टिंग दिस पॉलीमराइजेशन केमिकल रिएक्शन, फाइनली जो आपको यहाँ पे पॉलीमर स्टूडेंट मिलेगा, दैट इज व्हाट योर क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ अक्राइल अमाइड। तो इसका हमें क्या मिलेगा, क्रॉस लिंक। सो यू कैन सी दिस इज द होल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये है क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो सबसे मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग ने पॉली अक्राइल अमाइड को ही क्यों चेंज किया है फॉर दिस एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वेरी सिंपल इज दैट दिस स्ट्रक्चर, इफ यू आर गोइंग टू लुकिंग एट केयरफुली, सो दिस स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट क्रॉस लिंक। तो यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे प्रॉपरली दे आर गोइंग टू बी अटैच, क्रॉस लिंक प्रॉपरली स्टेबल स्ट्रक्चर है। देन दिस इज द एक्चुअली टफ देन योर एग्रो जेल, थर्मली वो स्टेबल है, ट्रांसपेरेंट है, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंटली दे आर रिलेटिवली केमिकली इनर्ट इन नेचर, मतलब ये प्रोटीन के साथ किसी भी तरह का यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन नहीं देने वाला है। सो इट इज अ वेरी केमिकल इन इनर्ट इन नेचर, एज वेल एज दिस जेल आर जनरली अनचार्ज एंड प्रिपेयर इन अ वैरायटी ऑफ पोर साइज, बिकॉज यहाँ पे पोर साइज रियली मैटर करता है। तो ये जो जेल है ओवरऑल ये अनचार्ज है, and secondly chemically inert, and one more thing, they are going to be preparing variety of pore sizes. So this is what the few very important point that why we choose the polyacrylamide for this process. Okay, then next now you are going to see the protein sample आपने कैसे बनाया है। So this is your protein folded with the what student, you can see over here this actually your protein folded with the positive and the negative charge। अब आपके प्रोटीन में जो भी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज होंगे, ठीक है, एंड दिस एसएस डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जैसे मैंने यहाँ पे बीटा मतलब 2 मरकैप्टो इथेनॉल अपने डाला, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस दिस एसएस बॉन्ड, तो एसएस बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, एंड यू विल गेट दिस बॉन्ड। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन SDS is going to be added, and these SDS are going to be bind with this actually proton के साथ वो क्या होगा, उस प्रोटीन के साथ वो bind हो जाएगा। So SDS with the negative charge, they are going to be bind with this actually what protein molecule, and finally as soon as these SDS are going to be bind, तो ये जो आपका फोल्डेड जो स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे जनरली क्या होता है आपका जो भी टर्शरी और जो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द व्हाट प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये मेजर रोल है एसडीएस का। सो नाउ यू कैन सी how you will get the linear chain over here, ठीक है। So this is the unfolded linear structure with negative charge proportional to the polypeptide chain length, and finally you are going to be
get your final structure. And then this actually linear structure means charges are going to be separate out as soon as you are going to be applying the voltage, electric current. So this is what all about this actually sample preparation, and the last one will be what your student gel preparation. Now, once you understand the beauty of this, both the gel preparation and the sample preparation, let us now start with the apparatus. कि इसमें हमें apparatus क्या use करना है? How exactly SDS page technique will be work? ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लुकिंग एट द असेंबली. तो ये आपका स्टूडेंट एक्चुअली ग्लास कास्टिंग apparatus है, तो इसे हम लोग ग्लास कास्टिंग चेम्बर भी बोलते हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली द टू चेम्बर्स वी नीड टू यूज. along with these are the actually glass प्लेट्स हमें यूज करना है. दीज आर द कोम. अब यहाँ पे रोल जो है कोम का वो स्टूडेंट बहुत जरूरी है. सो व्हाट इज एक्चुअली मेजर पर्पज एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द कोम. तो कोम जो होता है दैट जनरली प्रोवाइड्स टू द वेल. मतलब जो वेल हमें यहाँ पे चाहिए, मतलब मान लीजिए ये मेरा ग्लास प्लेट है, तो इस ग्लास प्लेट में ऐसे जो वेल्स आते हैं ना, वो वेल्स क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे जनरली कोम की जरूरत होती है. So once you are going to be creating this well, in that wells you are just supposed to be introduce your sample, जहाँ पे आप आपके सैंपल को क्या करते हो, इंसर्ट करते हो. ठीक है, तो दिस इज हाउ द combs apparatus are going to be most important. Then this is the casting chamber lead and this is the actually inert material. जो आपका in between जो आपको इंसर्ट करना है that is the sheet list. ठीक है, तो ये कुछ ग्लास मटेरियल है. along with that now this is the chart. entirely this how SDS page will be work out. तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी रोल ऑफ द ईच एंड एवरी पेज. अब यहाँ पे अगर देखोगे, जैसे मैंने बोला था, जो बिलो यहाँ पे जो मार्क दिया होता है आपको, अप टू दिस मार्क यू हैव टू व्हाट एड योर रनिंग जेल. रनिंग मतलब यहाँ पे आपका रिजॉल्विंग जेल आपको ऐड करना. अब रिजॉल्विंग जो जेल आपने बनाया था उसका एक्चुअली पीएच यहाँ पे कितना था, 8.8. फिर आप यहाँ पे देखोगे द अपर मार्क, तो इस मार्क के अबव जो आपका जो सॉल्यूशन आपने फिल किया है वो है आपका स्टैकिंग जेल. स्टैकिंग जेल का आपने अगर पीएच चेक किया होगा तो यहाँ पे आपका पीएच था 6.8. ठीक है, उसके बाद आप अगर बात करते हो तो जो आपका पीएच जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आप जो बफर सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, अब उस बफर का मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो हम लोग बफर यूज कर रहे हैं फॉर सेपरेशन प्रोसेस, उसका पीएच यहाँ पे स्टूडेंट कितना है, 8.3 है. कितना है इसका पीएच, 8.3. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाउ वी आर गोइंग टू बी सेपरेट. और जैसे अपने बफर में यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं क्या स्टूडेंट, ग्लाइसिन मटेरियल यूज करें. आप अगर ग्लाइसिन देख रहे हो तो ग्लाइसिन एक्चुअली प्रेजेंट इनटू द ऑल द थ्री फॉर्म. तो ग्लाइसिन जो होता है जनरली प्रेजेंट एज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और लाइक इन द न्यूट्रल चार्जेस ऑल्सो. तो आइसो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है ग्लाइसिन के लिए, जहाँ पे उसके प्लस एंड माइनस जो चार्जेस होते हैं दे आर इक्वल. तो ग्लाइसिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है स्टूडेंट वो है यहाँ पे 5.8. कितना है स्टूडेंट, 5.8. तो 5.8 पे उसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग 5.8 के बिलो जाते हैं तो दे आर गोइंग टू बी प्रोटोनेटेड, जो है बेस एसिडिक हो जाएगा पीएच में, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड, कन्वर्ट इनटू द एसिडिक. एंड अगर वो अबाव यहाँ से जाता है तो दे आर गोइंग टू बी डीप्रोटोनेटेड टुवर्ड्स द पीएच, मतलब वो बेसिक हो जाता है. द नेगेटिव चार्जेस आर गोइंग टू बी इंक्रीजेस. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस फिनोमेना वी कैन जस्ट स्टडी कि यहाँ पे क्या होने वाला है. सो नाउ लुकिंग एट दिस एक्चुअली entire theoretical part, then what will happen, first of all you need to see here. ना स्टैकिंग जो जेल है, यहाँ पर स्टैकिंग जेल में क्या है आपके जनरली जो नेगेटिव जो चार्ज है ग्लाइसिन आयन. अब नेगेटिव चार्ज ग्लाइसिन आयन, व्हाई आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड, बिकॉज यहाँ पे देखो पॉइंट कितना है बफर सॉल्यूशन का ग्लाइसिन का, 8.3. मतलब वो 5 पॉइंट से ज्यादा है, मतलब वो आप रेंज में पीएच के कहाँ पर जा रहा है, टुवर्ड्स द बेसिक. मतलब यहाँ पे ग्लाइसिन आपका कौन से फॉर्म में होगा स्टूडेंट, नेगेटिवली चार्ज में होगा इन द 8.3. अब जैसे ही वो यहाँ पे 6.5 में आएगा तो ये नियर बाय 5.8 है, तो ओनली 1 पॉइंट का ही डिफरेंस है, तो वो किस स्टेट में आएगा, ग्लाइसिन आपके न्यूट्रल स्टेट में आएगा. और जैसे ही वो फिर से नीचे यहाँ पे 8.8 में आएगा, देन अगेन दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज देयर बेसिसिटी, मतलब वो फिर से नेगेटिव इसमें चला जाएगा. तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो करंट है
I am going to be pass or switch on the light, then what will happen, the charges, अब जो ट्रीज बफर में जो मेरा ट्रीज HCl जो क्लोराइड आयन है, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 क्लोराइड आयन होंगे आपके स्टैकिंग जेल में। तो सबसे पहले जो क्लोराइड जो नेगेटिव आयन है, दे आर गोइंग टू बी मूव टुवर्ड्स द व्हाट योर स्टूडेंट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास सबसे पहले कौन आएगा, आपका क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के बाद आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपका यहाँ पे क्या है, एसडीएस और प्रोटीन सैंपल जो आपने यहाँ पे ऐड किया था, सैंपल एंड सैंपल बफर, तो यहाँ पे आपका सेकेंड होगा एसडीएस एंड योर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये होगा आपका सेकेंड फिर इन द सेपरेशन। और उसके बाद ग्लाइसिन, तो यहाँ पे क्या है, आपका न्यूट्रल इन नेचर है, स्टैकिंग जेल में जैसे आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, तो उसके कुछ चार्जेस है नहीं, तो सबसे लास्ट में कौन होगा, यहाँ पे ग्लाइसिन होगा। सो दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनटू द स्टैकिंग जेल। अब ये फिर से रन होंगे इन द रिजॉल्विंग जेल, तो जैसे ये यहाँ से यहाँ पर रन होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, उनका जो बिगर प्रोटीन है वो सबसे लास्ट में रहेंगे, स्मॉल जो प्रोटीन है वो सबसे आगे रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड आयन तो सबसे फास्ट यही पे आएंगे नीचे, बट नाउ द पोजीशन ऑफ द ग्लाइसिन एंड एसडीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स चेंज। अब ग्लाइसिन जैसे 8.8 pH में आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू बेसिसिटी, मतलब वो बेसिक की तरफ जाएगा, तो इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो ग्लाइसिन हियर in the running gel convert from neutral to what here, बेसिक इन कंडीशन। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो क्लोराइड आयन आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कौन होगा, आपका ग्लाइसिन आएगा, और ग्लाइसिन के बाद फिर आपका यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, एसडीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आएगा। सो दिस इज द पोजिशन एंड फाइनली दे आर गोइंग टू बी separate out. So this is what overall mechanism, and depending upon this different actually pH, how they are going to be changed wonderfully. You can see here overall your separation process with respect to your positive electron and with respect to, अब ये यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपको प्रॉपरली याद रखना है। अब मैं आपको ओवरऑल थ्रू आउट दैट हाउ दिस एग्जैक्टली एसडीएस पेज जो है लैबोरेटरी में कैसे इसको हम लोग वर्क करते हैं, सो आई एम नाउ इंट्रोड्यूस विद द लैब वर्क कि लैब में एग्जैक्टली हमें कैसे परफॉर्म करना है, ठीक। So now student, here you can see these are the actually properly means all the material which you required for the what your means for the glass casting apparatus. So here you can see the all the apparatus one by one. So this is the your glass casting apparatus. This is the actually your chamber, glass chamber. Then this is the actually falcon tube to preparation of the sample. Then this is the next one, that is going to be distilled water and all the solvent which you require. So the very initially what you have to do, you have to prepare the what your glass casting apparatus, वो सबसे पहले यहाँ पे आपको बनाना है। This is the actually student the glassing sheet. ओके तो इसमें आपको ये फ्रेम जो होता है ग्रीन कलर का, इस फ्रेम में आपको क्या करना है, आपका जो भी ग्लास प्लेट है उसको आपको प्रॉपरली इंसर्ट करना है। सो द 2 ग्लास प्लेट आर गोइंग टू बी वर्टिकली इंसर्टेड इनटू दिस व्हाट एक्चुअली ग्रीन कलर शीट में, उसको आपको ऐड करना है। देन लेटर ऑन अगेन यू आर गोइंग टू बी ऐड दिस glass plate vertically into this actually glass casting apparatus, close it properly and then fix it well with this actually knob. After that you can put the distilled water and just check कि इसमें कुछ लीकेज है या नहीं, अगर लीकेज होता है तो उसको आपको फिर से चेंज करना है and then pour the gel. After pouring the gel immediately add the comb. अब comb जैसे कि मैंने बोला, comb actually helps you to generate the what wells for the sample preparation and then just leave it. Then once it is going to be solidify, तो जैसे ये solidify हो जाएगा, remove this actually green comb from this actually gel. Then next after the removing gel आपका solidify हो गया, remove करो उसको and then this actually glass plate you wanted to insert into the glass chamber. अब glass chamber में ये equally vertically आपको अटैच करना है and in between these 2 glass plate you have to pour the your gel. Now this actually material enter into the glass tank. अब इसमें आपको 2 जेल डालना, एक है आपका रनिंग जेल, फिर आपको डालना है इसमें रिजॉल्विंग जेल, और ये है यहाँ पे आपका बफर। तो आपने यहाँ पे देखो 2 जेल्स लाइनिंग दिया है, दिस इज द सेकेंड जेल। Pour entire material into this tank and into this, then removing the in order to determine this bubble यहाँ पे आपको properly remove करना है ताकि ये reaction में कोई interfere ना करे। So after removing the entire bubble, जो भी आपने सैंपल बनाया हुआ है, just take out the sample
which you wanted to introduce into the well, just with the help of this pipette. तो पिपेट मैंने लिया, उसके बाद मैंने उसको पिपेट आउट किया, एंड देन जस्ट with the help of this actually prepared properly insert into the well. तो इसमें जो well है वहां पर उसको आपको क्या करना है, properly insert करना है. So once you are going to be inserting over here, just looking at carefully. तो मैंने उसको insert किया. After the insertion of your sample, you need to just close this chamber. तो sample को मैंने ये करने के बाद मैंने जो क्लास टैंक है उसको मैंने लीड से पूरा बंद कर दिया, एंड देन आई एम अटैचिंग द व्हाट हियर इलेक्ट्रोड्स. तो ये यहाँ पे जो आपके एनोड एंड जो कैथोड है दैट हैज टू बी रिएक्टेड विद दिस एक्चुअली बॉक्स. हाई वोल्टेज जो बैटरी है उसके साथ कनेक्ट करना है, एंड देन स्टार्ट द प्रोसेस. जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट किया, यू कैन सी the separation are going to be started, the molecule are start to running. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, लार्जर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, दे आर जो इज गोइंग टू बी केप्ट बिहाइंड, वेयर द स्मॉलर जो पार्टिकल है दे स्टार्ट टू रन टूवर्ड्स. तो जैसे ही उनका स्टार्ट होगा, सी जो ग्रीन कलर में था वो स्मॉल था, larger number behind though. So depending upon now the mass, shape and the charges, they are going to be what, separate out once you are going to be start the electricity. अब यहाँ पे आप अगर चार्ट देखोगे, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज जो आयन से आपके, आई एम जस्ट गोइंग टू बी अगेन शेयरिंग दिस चार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है. So now I am explaining this chart. So you can see अगर वो positively charge है आपका जो आयन से, if it is a positively charge और नेगेटिवली चार्ज है, तो फास्ट माइग्रेशन यहाँ पे किसका होगा स्टूडेंट, नेगेटिवली चार्ज का, एंड देन योर पॉजिटिवली चार्ज आर गोइंग टू बी स्लो माइग्रेटेड डिपेंडिंग अपॉन द मास. हाई मोलिकुलर जो मास है, जिसका हाई मोलिकुलर वेट है, वो सबसे पीछे होगा, whereas the लो मोलिकुलर वेट जो कंपाउंड है वो सबसे फास्ट यहाँ पे क्या होंगे, सेपरेट आउट होंगे. एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द शेप, तो शेप्स में यहाँ पे अगर वो इलोंगेटेड शेप है तो पीछे रहेगा, whereas the जो राउंड शेप में वो सबसे फास्ट होंगे सेपरेट आउट. After that, once you are going to be means introduce your sample and sample buffer, they start to separate out, जिसमें आपका loading die front पे होगा, and see how wonderfully they are going to be separate out according to their what masses. और यहाँ पे जो KD जो वर्ड दिया हुआ है, देख KDA का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है यूनिट, मतलब किलो डाल्टन्स. तो दिस इज एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन. So you can see the protein sample, protein number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this is how they are going to be separated. So the very first initially जो small जो molecular weight था 6, they are going to be separate out first, and whereas the high molecular weight जो है protein number 1 that is a 188 किलो डाल्टन, वो सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट आउट होगा. So once you are going to be separate out, now they are going to start to visualize. तो हम लोगों ने यहाँ पे जो केमिकल यूज किया था वो था ब्रोमोफिनॉल ब्लू डार्क. तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे स्टेन दिखाई देगा. यू कैन सी नाउ इन द अंडर द यूवी लाइट यू कैन ऑब्जर्व द ऑल द सेपरेशन ऑफ द व्हाट हियर चार्ज पार्टिकल. सी then depending upon the chromo plus and silver staining and the zinc staining, these color are going to be changes. तो अब यहाँ पे staining के लिए आप कौन सा dye use कर रहे हो, that is also again going to be very important. So I hope so now overall that how SDS page will be working out in the laboratory, that you can understand completely. Now you can just understand what are the advantages and the disadvantages of this actually technique. So let us start. First of all, you need to understand key advantages kya is technique hai. So the very first advantages is that the migration is exactly proportional to the molecular weight. So you can easily identify the molecular weight of the any protein molecule. Secondly, advantage ये है इस technique का, that highly sensitive test है. Then separate 2% differences in mass. तो यहाँ पे very easily आप उसको separate out कर सकते हो. Then second, require a very small amount of sample. तो यहाँ पे हमें ज्यादा sample नहीं लगता है. And then lastly, very stable chemically cross-linked gel. So these are the few advantages of this technique. But along with the disadvantage, there has to be some disadvantage of this technique, is that this technique is highly costly. Then gel preparation जो है, it is a very difficult and require the larger time. मतलब यहाँ पे longer time जाता है gel preparation के लिए. Second, acrylamide जो gel है, it is actually very potent and neurotoxic in nature. तो ये actually जो chemical है, it is a neurotoxin actually chemical है. So while you are handling the polyacrylamide gel during the actually laboratory work, you need to take care of that कि आपने properly gloves पहने हुए, आपने lab coat डाला हुआ. So everything
you need to follow and you should take care of that. Apart from that, जो आप dye यहाँ पे use कर रहे हो ब्रेमोफिनॉल blue, that is also be hazardous in nature. So while you are going to be use the your all the actually material, whichever you are going to be use a material like dye or everything, you need to properly take care of that कि handling जो है उन दोनों process का, that should not be avoid breathing करना है आपको, lab coat आपको wear करना है, everything ये आपको properly take care करना है. And secondly जो डाई आप यूज करें दैट इज ऑल्सो हार्मफुल बाय इनहेलेशन और इंजेक्शन. So wear appropriate gloves, glasses, and safety glasses are must while you are going to be handling that chemical. So these are the few disadvantages है जो chemical हम लोग यहाँ पे use कर रहे हैं उनके. And lastly, the pure band resolution due to high alkaline operating pH. तो ये उसका last disadvantages. So with these few notes of the advantage and the disadvantages, last part of the SDSP is the what are the application of this technique. So as earlier I said that कि forensic है, molecular biology में या biotechnology में इसमें बहुत सारे application है, as well as in the characterization and the purification of the protein sample we use this technique. But apart from that, again the most important next point is that the technique will be used in the peptide mapping में हम लोग इसको use करते हैं. Then again it is used to compare polypeptide composition of different structures, तो वहां पर भी ये use होता है. Then it is estimate the purity of the protein, and as well as it is used in Western blotting and the protein ubiquitination, and it is used in HIV test to separate the HIV protein. So ये बहुत जरूरी इसका एक application है. And then finally analyzing the size and the number of polypeptide subunits, ये भी इसका important एक application है. So with these actually point, these are the various application you can study through the SDS page technique. So I hope so student in this actually entire video you should completely understand that what is the principle, what is the instrumentation, how exactly SDS page will working out in the laboratory level, what are their advantages, disadvantages with the few application part. So but still if you have any doubt regarding this technique, so definitely you can ask me the question. I definitely resolve your all the problems. So student, once again, thank you so much for watching this video. And if you really like this video, so don't forget to subscribe us. Okay. Once again, thanks a lot and keep studying and keep smiling. Thank you. Like a Hellcat.